নমস্কাৰ ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10ৰ ইলেক্টিভ হিন্দী সাবজেক্টত থকা প্ৰথমটো অধ্যায় নেম কি ইট। এই অধ্যায়টোৰ অন্তৰ্গত অভ্যাসমালাত যিমানখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে আমি গোটেইখিনি বহুত ভালকৈ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু উত্তৰবোৰ কিন্তু তোমালোকক চুটিকৈ আৰু সহজতে বুজি পোৱাকৈ লিখি দিয়া হৈছে। আৰু তোমালোকে যদি সেম এনেকৈ উত্তৰবোৰ লিখা পৰীক্ষাত খাটাং তোমালোকে ভাল মাৰ্ক পাবা, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে কোনবোৰ বস্তু কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব পাঠটিত ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা আছে। সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকৈ চাবা। তোমালোকৰ নেম কি ইট পাঠৰ অন্তৰ্গত অভ্যাসমালাত থকা বোধ এবং বিচাৰৰ 1 নম্বৰত আছে পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দো। তাৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে তোমালোকৰ राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर হ'ব राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गाँव में हुआ था। तो तुम्हारे मन रखा मुजफ्फरपुर जिला गाँव नाम कि बेनीपुर। এই ঠাইত কাৰ জন্ম হৈছিল राम वृक्ष बेनीपुरीर जन्म হৈছিল। স্টুডেন্টস তোমালোকে সদায় হিন্দী পাঠ পঢ়াৰ আগত এটা কথা মনত ৰাখিবা, পাঠৰ শেষত যিবোৰ শব্দাৰ্থ এবং টিম্পনি দিয়া থাকে যে এই শব্দৰ অৰ্থখিনি কিন্তু তোমালোকে গোটেই কিতাপৰ পৰা পঢ়ি ল'বা। এইখিনি যদি তোমালোকে পঢ়া কাৰণ তোমালোকৰ ফাইনেলত শব্দৰ অৰ্থ লিখিব আহে, শব্দৰ বিপৰীত শব্দ লিখিব আহে। যদি তোমালোকৰ শব্দৰ মিনিংটো গম পোৱা বা অৰ্থটো জানা তোমালোকে কিন্তু বিপৰীত শব্দ লিখিব পাবা, ঠিক আছে। সো তোমালোকে কি কৰিবা, এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে বস্তুটো অলপ ধ্যান দিবা। তোমালোকে যেতিয়া পাঠটো পঢ়িবা তোমালোকে সদায় এই শব্দ অৰ্থত থকা মানে পাঠৰ লাষ্টত দিয়া থাকে তাৰে কি কৰিবা শব্দৰ অৰ্থবোৰ পঢ়ি ল'বা। যেনেকৈ সুগৰ, সুগৰ মানে কি সুডল সুন্দৰ আকাৰৱালা, ঠিক আছে। এনেকৈ তোমালোকে এই গোটেইখিনি শব্দৰ অৰ্থ পঢ়ি ল'বা। ইয়াৰ বাহিৰত কিন্তু তোমালোকক শব্দৰ অৰ্থ পৰীক্ষাত নুসুধে, ঠিক আছে। যদি তোমালোকে ফাইনেলত ভাল মাৰ্ক পাব খুজিছা তোমালোকে এনেকৈ এবাৰ শব্দ অৰ্থখিনিও ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, ঠিক আছে। 6 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ बेनीपुरी जी को जिले की यात्राओं क्यों करनी पड़ी थी। उत्तर হ'ব भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में हिस्सा लेने के अपराध में बेनीपुरी जी को जेल को यात्रा करनी पड़ी थी। 9 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था। स्वर्गवास माने केতিয়া मृत्यु হৈছিল। उत्तर হ'ব बेनीपुरी जी का स्वर्गवास 1968 इंग में हुआ था। চনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা 1968। 10 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ चमकीली सुंदर सुघर इमारत वस्तुत किस पर टिकी होती है। उत्तर হ'ব चमकीली सुंदर सुघर इमारत वस्तुत नीम की ईट पर टिकी होती है। এইটোৰ উত্তৰটো ইজি হ'ব তোমালোকৰ পাঠৰ নামেই হ'ল ইয়াৰ এনসাৰ नीम की ईट पर टिकी होती है। তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ল दुनिया का ध्यान सामान्यत किस पर जाता है। उत्तर হ'ব दुनिया का ध्यान सामान्यत इमारत के कंगुरू पर जाता है। 6 নম্বৰ হৈছে তোমালোকৰ नीम की ईट को हिला देने का परिणाम क्या होगा। उत्तर होगा नीम की ईट को हिला देने का परिणाम कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। 6 নম্বৰ प्रश्न হৈছে তোমালোকৰ सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्यों खोजती है। उत्तर होगा सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। 10 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुत किनकी शहादत से चमकते हैं। उत्तर होगा लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज किसके लिए चारों ओर होराहुरी मची है। उत्तर होगा आज कंगूरे बनने के लिए चारों ओर होराहुरी मची है। और तुम्हारे शेषरটো प्रश्न হ'ব पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है। तार माने यार अर्थ की आछे এই তোমালোকৰ পাঠত যে पठित निबंध में सुंदर इमारत এই শব্দটোৰ কি अर्थ বুঝাইছে। पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। কি হ'ব ইয়াৰ মিনিংটো सुंदर इमारत माने नया सुंदर समाजर कथा কৈছে। এতিয়া তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত
2 নম্বৰত আছে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো মানে অলপ চুটিকৈ উত্তৰ লিখিব লাগিব কিমানটা লগভগ 25 শব্দ মে 25টা শব্দৰ ভিতৰত তোমালোকে এনসাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে मनुष्य सत्य से क्यों भागता है उत्तर होगा सत्य कठोर होता है कठोरता और बहापन साथ साथ जन्मा करते हैं जिया करते हैं हम कठोरता से भागते हैं फहेपन से मुख मोड़ते हैं और इसीलिए सत्य से की सभी भागते हैं सत्य माने होइसे सत्य सत्यर পৰা মানুহে কিয় দূৰত যায় এইটোৰ কথা সুধিছে তার এনসার এইখিনি আছে এনসারবোৰ কিন্তু তোমালোকক অতি চুটিকৈ আৰু ভালকৈ লিখি দিয়া হৈছে যদি তোমালোকে সেম এনেকৈ লিখা ভাল মার্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু খ নম্বৰত দিয়া আছে लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है उत्तर होगा लेखक के अनुसार वो ईंट अधिक धन्य है जो ज़मीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत को पहली ईंट बनाई কি কৈছে ইয়াত লেখকে যে কোনবোৰ ইট অধিক ধন্য বুলি লেখকে কি কৈছে যে जो जमीन के 7 हाथ মানে জমিনৰ হাত মানে 7 হ'ব ইয়াত এই 7 মানে 7 হাত অৰ্থাৎ আমালোকৰ হাতৰ কথা কৈছে নিচে মানে তলত থকা হাত নিচত থকা বা তলত থকা ईटर कथा कैसे এইবোৰ की ईट धन्य ईट ग नम्बरत আছে তোমালোকৰ नीम की ईट की क्या भूमिका होती है नीम की ईट एक त्याग और बलिदान भरे जीवन का प्रतीक है এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় नीम की ईट এইটো পাঠৰ নাম হয় এই পাঠৰ নামটোৰ ওপৰত তোমালোকক সুধিছে ইয়াৰ ভূমিকা কি ইয়াৰ ভূমিকা হল এক त्याग আৰু বলিদান হল কি नीम की ईट कंगूरे की ईट की भूमिका स्पष्ट करो माने कंगूरे की ईटर की भूमिका बा की काम ये लिखिब गई कंगूरे की ईट इमारत की ऊपरी खूबसूरती को दर्शाती है तथा वो अपनी बनावट एवं खूबसूरती से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है अर्थात नीम की ईटर अर्थ হৈছে যেতিয়া তোমালোকে চাবা যেতিয়া এটা বিল্ডিং বনোৱা হয় এনেকৈ ওপৰত যে বিল্ডিঙত ইটেদি এনেকৈ কাটি যে ওয়ালবোৰ সজায় এইবোৰ কিন্তু ওপৰত থকা ইটবোৰ এই ওপৰত থকা ইটবোৰক কয় কংগুৰে কি ইট ঠিক আছে কিন্তু মাটিৰ তলত যেতিয়া বিল্ডিঙৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনায় বিল্ডিংটো যে যাৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে এই তলত যিবোৰ ইট থাকে এইবোৰ হৈছে কি नीम की ইট অৰ্থাৎ এইবোৰৰ কিন্তু ভ্যালু বেছি এইবোৰৰ কাৰণে কিন্তু বিল্ডিংটো ওপৰত থিয় হৈ আছে অৰ্থাৎ এই कंगूरे এইবিলাক कंगूरे की ईट বুলি কয় এইবোৰ ইট থিয় হৈ আছে কাৰ কাৰণে এই नीम की ईटर কাৰণে ঠিক আছে সেই কাৰণে কৈছে যে नीम की ईटर মানে এটা কি ভূমিকা কি ত্যাগ আৰু বলিদান কাৰণ ইহঁতে বিল্ডিংটোক থিয় কৰাৰ মেইন কাম হৈছে ইহঁতৰ কিন্তু ইহঁতক দেখা নাযায় ইহঁতে কি কৰে তলত থাকে কিন্তু ইহঁতে সদায় বিল্ডিংটোক এটা বিল্ডিং এটাক বা ঘৰ এটাক থিয় কৰি ৰখাত সহায় কৰি থাকে বা কাম কৰি থাকে কিন্তু ইহঁতক কোনোদিনও আমি দেখা না যাওঁ বা ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা আমি বুজি নাপাওঁ ইয়াৰ কথা আমি কোনোদিনও নকওঁ সেই কাৰণে কৈছে नीम की ईटर ভূমিকা কি ত্যাগ আৰু বলিদানৰ নিচিনা এটা জীৱন বুজিছা তোমালোকে कंगूरे की ईट হল ওপৰত থকা বৰ আৰু তলত থকা বৰ হৈছে কি नीम की ईट ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ব शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों उत्तर होगा शहादत का लाल सेहरा वे लोग पहनते हैं जो देश के लिए अपना अस्तित्व निछावर करते हैं ताकि बाकी लोग इस संसार का लुप्त अच्छी तरह उठा सके अर्थात এই তলত থকা ইটবোৰ কিন্তু ওপৰত থকা ইটক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আছে বা থিয় কৰি ৰাখি আছে সেই একেহাৰ কথা ইয়াৰ লগত মিলাইছে যে शहादत का लाल चेहरा कौन सा लोग है शहादत का लाल चेहरा वो लोग है जो देश के लिए अपना अस्तित्व निछावर करते हैं अर्थात এই তলত থকা ইটবোৰ কিন্তু ওপৰত থকা ইটৰ কাৰণে কিন্তু তলত থকা ইটবোৰ সদায় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া থাকে অৰ্থাৎ নিজকে নিচত লৈছে বা তলত লৈছে এইটোৰ কথা ইয়াত কৈছে এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ব लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे अमर अर्थात
কেতিয়াও শেষ নোহোৱা বা কেতিয়াও মৃত্যু নোহোৱা বা কেতিয়াও শেষ হৈ নোযোৱাক অমৰ বুলি কোৱা হয়। ইছাই মানে হৈছে তোমালোকৰ ইছাই এটা ধৰ্মৰ নাম। এই ধৰ্মটোক কোনবোৰ বস্তু আৰু কোনে अमर बनाई से? उत्तर होगा लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया है जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार में स्वयं को बलिदान कर दिया। बिना स्वार्थ के वो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गई। ठीक है, কোনবোৰ মানুহে ইছাই ধৰ্মক অমৰ বনাইছে? যিবোৰ মানুহে এই ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ বলিদান দিছিল, নিজৰ বলিদান দি তথাপিও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেইবোৰৰ কাৰণে কিন্তু এই ইছাই ধৰ্মটো কি হৈছে? অমৰ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কোনো স্বাৰ্থবিহীন তেওঁলোকে কি কৰিছিল? চুলি পাৰ স্বৰ্গী অৰ্থাৎ ফাঁচি দিয়া হৈছিল যে সেইটো কয় চুলি। नेक्स्ट प्रश्न আছে তোমালোকৰ आज देश के नौजवान के समझ चुनौती क्यों है? उत्तर होगा आज हमारे देश के नौजवानों के सामने चुनौती यह है कि समाज का नवनिर्माण करें और निर्माण करते वक्त हम इमारत का पंगुरा बनाने की बजाय नीम की ईंट बनाने का इरादा एवं साहस रखें ताकि उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो। की कैसे आज देश के नौजवानों के समझ चुनौती क्यों है? क्या है अर्थात की है चुनौती माने आमार এইটো যে কৈছে তোমালোকৰ চুনৌতি মানে আমাৰ কি হ'ব লাগে এইটো চোৱা তোমালোকে ইয়াত ভালকৈ তোমালোকে বুজি পাবা। লাইনটো नवनिर्माण और निर्माण करते इमारत का पंगुरा बनाने की बजाय अर्थात ऊपर ईटबोर बनावार माने बाद दी नीम की ईट बनाने का इरादा माने नीम की तलर ईटर गाँथनी ভাল কৰি কৰিব লাগিব ওপৰৰ ईटर गाँथनी আগত বা আমি আগত এইখিনিৰ আমালোকৰ প্লান থাকিব লাগিব যে তলৰ ইটখিনি আমি কেনেকৈ কি কৰিম। তাৰপিছত অটোমেটিক্যালি যেতিয়া আমি তলত ভালকৈ কৰিম তেতিয়া ওপৰতো আমাৰ ভাল হৈ যাব। ঠিক আছে, ताकि उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो। যেতিয়া তোমালোকে বিল্ডিং এটাৰ ফাউণ্ডেশ্যন তোমালোকে বুজি পোৱা নাই। এইটো সাপোজ তোমালোকে ধৰি লোৱা এটা বিল্ডিং হয়, ঠিক আছে, এইটো বিল্ডিং হয়। এই বিল্ডিংটো কিন্তু এনেই ৰখি নাথাকা। যদি তোমালোকে দেখিছা বিল্ডিং বনোৱা মাটিত কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত খান্দি এই বিল্ডিঙৰ কাৰণে এনেকৈ সজোৱা হয়। ইয়াৰ ওপৰতে কিন্তু বিল্ডিংটো থিয় হৈ থাকে। ভূমিকম্প হওক যিয়ে নহওক এই তলৰ কামখিনিয়ে কিন্তু বিল্ডিংটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকে বা থিয় কৰি থকাত সহায় কৰে। তো যদি তোমালোকে এইখিনি কাম ভাল কৰি কৰা, তোমালোকৰ প্লান যদি এইখিনিত থাকে, এইখিনি তোমালোকৰ অটোমেটিক্যালি ভাল হৈ যাব। এই কথাখিনিকে কৈছে যে निर्माण करते वक्त इमारत का कंगूरा बनाने की बजाय नीम की ईट बनाने का इरादा एवं साहस रखे। तार माने नीम की ईट हल तलरखिनि और कंगूरा का ईट हल ऊपररखिनि तुम्हालोকক तलरखिनि बनाब कैसे जाते तुम्हालोकर उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो, जाते तुम्हालोकर भविष्य ভাল হয়। এই কারণে ভাল হ'ব যদি এইটো তোমাৰ ভাল হ'ব অটোমেটিক এইখিনি ভাল হ'ব, তোমালোকৰ ভৱিষ্যতো ভাল হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া হল তোমালোকৰ 3 নম্বৰ থকা সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো लगभग 50 शब्दों में 50টা শব্দৰ ভিতৰত তোমালোকে সংক্ষিপ্ত এটা উত্তৰ দিব লাগিব। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। यार अर्थটো হল যে মানুহ ওপৰত থকা ঘৰৰ ওপৰত থকা বা অট্টালিকা এটাৰ ওপৰত থকা ইটবোৰ তো দেখা পায় বা লক্ষ্য কৰে, কিন্তু তলত থকা ইটবোৰ কিয় কেতিয়াও লক্ষ্য নকৰে সেইটোৰ কথা কৈছে। उत्तर होगा मानव अपना स्वभाव से चुपचाप मरने के बजाय यह चाहते हैं कि ये तो यह होबो, हाँ ये होबो टाइपिंग मिस्टेक होइसे, यह चाहते हैं सॉरी ये ठीक है तुम्हारे ये ऐश होबो बजाय ऐश चाहते हैं, किंतु ऐसी ऐश प्रासी के लिए हमेशा जो बलिदान देना पड़ता इससे दूर करते हैं। लेकिन नीम की ईंट जो सुंदर कंगूरे की नीचे गड़ा होता है उसे कोई नहीं देखता। अर्थात वो खुद भी नहीं चाहता कि
उसे कोई देखे, उसकी प्रशंसा करे। यही कारण है कि मनुष्य का ध्यान नीम की ईंट की ओर नहीं बल्कि कंगूरे की ओर जाता है। तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न हल, लेखक ने कंगूरे की गीत गाने के बजाय नीम की गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? उत्तर होगा, लेखक ने आज देश के नवयुवक को आह्वान करते हुए देश के नवनिर्माण के लिए नीम की ईंट के समान चुपचाप अपने को निछावर करने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद हज़ारों नगर कारखाने और लाखों गांवों का नवनिर्माण हो रहा है। इसीलिए चुपचाप काम करने वालों लाखों नवयुवक की आवश्यकता है। इसीलिए यह वो सबको आह्वान करता है कि जिससे वो एक दिन नीम के गीत का गा सके, क्योंकि नीम बनाने वालों को इससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है सर, এতিয়া তোমালোকৰ नेक्स्ट प्रश्नটো হ'ব, सामान्य लोग कंगूरे की ईंट बनाना तो पसंद करते हैं, परंतु नीम की ईंट बनाना क्यों नहीं चाहते? মানে সকলোৱে ওপৰৰ ইটখিনি বনাব খোজে, কিন্তু তলৰখিনি কিয় বনাব নোখোজে? उत्तर হ'ব, इमारत पर लगे कंगूरे को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि लोग प्रसिद्ध होने या प्रशंसा पाने या अन्य किसी स्वार्थ के लिए समाज में लालच में आकर अपना योगदान बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए वो त्याग या बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि नीम की ईंट बनने पर उसका कोई लाभ या वजूद नहीं रहेगा। इसीलिए लोग नीम की ईंट की बजाय कंगूरे की ईंट बनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा तुम्हारा, लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों? ये तुम्हारा ऊपर जी प्रश्न आसिल जे ईसाई धर्मक कोने और केनेक अमर बनाइছে, এইটোৰ उत्तर लिखि दिले सेम হ'ব, কিন্তু उत्तरखिनि সেই प्रश्नটোৰ उत्तर और এইটোৰ उत्तर एकै হ'ব। लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन धर्म प्रचार को देना चाहते हैं जो जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार और प्रसार के लिए बिना किसी स्वार्थ के खुद को बलिदान कर दिया और मौन सहन करके धर्म प्रसार में लगे रहे। धर्म प्रसार करने में कितने ही लोग का मौत हो गया उनका हिसाब नहीं, लेकिन यह सत्य है कि उन्हीं के पुण्य प्रयास से ही आज ईसाई धर्म एक श्रेष्ठ धर्म बन गए। नेक्स्ट प्रश्न होगा तुम्हारा, हमारा देश किन के बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ? हमार देशखन कोनबर मानुहर बलिदानर कारणे আজি आज़ाद होइছে বা स्वाधीनता पाइছে? उत्तर होगा, हमारा देश उन बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ एवं लोभ के अपने देश के नाम खुद को सौंप दिया। उनमें से कईयों के नाम है आज इतिहास में दर्ज है, परंतु हमारे भारत के कोने कोने में हज़ारों ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम ही समाज में नाम आया नहीं। उन्होंने समाज में खुद को प्रसिद्ध करने की चाह रखी। वे हज़ारों तो बेनाम रहकर भी देश के लिए मर मिटे। उन्हें आम लोगों के बलिदानों के कारण आज हमारा देश आज़ाद है। नेक्स्ट प्रश्न आछे तुम्हारा, दधीसी मुनि ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था? उत्तर होगा, अत्याचारी दानव वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र की विशेष प्रकार के अस्त्रों की आवश्यकता थी, जो दधीसी मुनि की रीढ़ की हड्डी से ही बन सकती थी। अर्थात इसीलिए
दधीसी मुनि ने अपना बलिदान दे दिया। उन्हीं की रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया गया, जिससे बत्रासुर का वध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा तुम्हारे भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है। नवनिर्माण अर्थात नतुन करे जी निर्माण हब तार अर्थात तार बारे की कैसिल कविए। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने कहा है कि 7 लाख गाँव, हजारों शहरें, कल कारखानाएँ के नवनिर्माण के लिए आज ऐसे नौजवानों की ज़रूरतें हैं जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश बनने की जिनमें वासना न हो, जो नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई सूचना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो और दलबंदियों से अलग हो। नेक्स्ट है तुम्हारा नीम की ईट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है। उत्तर होगा नीम की ईट शीर्षक निबंध का संदेश यह है कि आज भारत के नवनिर्माण के लिए नीम की ईट बनने के लिए तैयार लोगों की ज़रूरत है, लेकिन विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईट बनने की होराहुरी मची है। नीम की ईट बनने की कामना लुप्त हो गई है। आज ऐसे नवयुवकों की ज़रूरत है जो भारत के निर्माण में नीम की ईट बनकर खुद को खपा दे। 4 नंबर আছে তোমালোকৰ सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्द में। এইটো কিন্তু ডাঙৰ হ'ব উত্তৰবোৰ 100টা শব্দত লিখিব লাগিব উত্তৰবোৰ। তোমালোকে এইবাৰ ভালকৈ লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা যদি তোমালোকক লাইন বাই লাইন এছামিছত বুজাই দিলে ভাল হ'ব নে তোমালোকক অকল পঢ়ি দিলে হৈ যাব। কাৰণ যদি মই তোমালোকক এছামিছত লাইন বাই লাইন বুজাই দিওঁ ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হ'ব। যদি তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ যদি প্ৰব্লেম নহয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই কি কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লাইন বাই লাইন এছামিছত ট্ৰান্সলেট কৰি বুজাই দিম। ঠিক আছে, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। কিন্তু এতিয়া ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব नीम की ईट का प्रतिकार्य स्पष्ट करो। माने कि कैसे नीम की ईट पाठर प्रतिकार्य की तुम्हारे बहलाई लिखिब লাগিব। उत्तर होब नीम की ईट का प्रतिकार्य है समाज का अनाम शहीद जो बिना किसी लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए तैयार है, जिसने देश की आज़ादी के लिए आधारशिला बनकर अज्ञात रहते हुए निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में स्वयं को खपा दिया। नीम की ईट परहित और त्याग का अनुपम प्रतीक है। नीम की ईट उन लोगों का प्रतीक है जो जिन्होंने देशवासियों को सुंदर समाज प्रदान करने हेतु स्वयं की बलिदान कर दिया, जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, जो त्याग एवं संपूर्ण की प्रतिमूर्ति है। दिया सा तुम्हारे नेक्स्ट प्रश्न कंगूरे को ईट के प्रतिकार्य पर समयक प्रकाश डाली। इटर ऊपर आंसर करिब লাগিব। दिया कंगूरे की ईट का प्रतिकार्य है समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्ध प्रशंसा तथा अपने स्वार्थ के लिए हिलर समाज का कार्य करता है, जो देश के लिए कार्य करने के पश्चात बदले में उच्च पद पर सुशोभित होने की कामना व इच्छा रखते हैं। कंगूरे की ईट उन लोगों का प्रतीक है जो उच्च पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सुविधाएं पाने के लिए स्वार्थपरता से कार्य करते हैं। ऐसे लोग देश के नवनिर्माण एवं उन्नति के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं करते, बल्कि भ्रष्टाचार, अपराध, देश आदि को बढ़ाते हैं। साथ ही यश लोभ में आकर देश की उन्नति में बाधा बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारे हाँ शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। এই লাইনটো তোমালোকৰ
পাঠ্যৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ঠিক আছে কা আশাই ব্যাখ্যা কৰে ইয়াৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব এই লাইনটো তোমালোকক কি কৰিব লাগিব ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব उत्तरत की আছে हाँ शहादत और मनमुख समाज की आधारशिला यही होती है इसका आशय यह नवनिर्माण समाज की नींव मौन बलिदान हो कि इत एवं सुंदर एवं होती है किसी भी सुंदर रचना साकार करने के लिए मान बलिदान करना ही पड़ता है जैसे एक सुंदर भवन बनाने के लिए सबसे अच्छी ईंटों की नींव में जाना ही पड़ता है ठीक प्रकार देश के नवनिर्माण और सुंदर समाज के लिए कुछ देश प्रेमियों को मौन बलिदान करना ही पड़ता है जिस प्रकार ईसाई धर्म के प्रसार में कई लोग अनम उत्सर्ग हो गए जिनको चर्चा शायद हो कहीं होती हो परंतु आज उन्हीं के पुष्य प्रताय व मौन बलिदान से ईसाई धर्म फल फूल रहा है तो ईसाई होबो हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए ईसाई होबो उसी प्रकार हमारे देश के आज़ाद होने और समृद्ध राष्ट्रों का निर्माण करने के पीछे कोई निस्वार्थी सैनिक गणों का मौन आत्मा बलिदान शामिल हो अर्थात यह स्पष्ट है कि समाज की आधारशिला शहादत और मौन मुख होती है 5 नंबर तुम्हारे दिया से संदर्भ में वाक्य व्याख्या करें ये तुम्हारे किसुमान लाइन तुम्हारे कि पाठर पर तुली दिया से व्याख्या करिब लागिब एबोर किन्तु इम्पोर्टेन्ट तुम्हारे फाइनलत किन्तु एबोर व्याख्या आहिब हम कठोरता से भागते हैं वहपन से मुख मोड़ते हैं इसीलिए सच से भी भागते हैं এই লাইনটো তোমালোকৰ কি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব লাইনবোৰ তোমালোকে কিন্তু মনত ৰাখিবা उत्तर হ'ব प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नीम की ईट नामक पाठ से उपस्थापन किया गया है तुम्हालोके जेतिया तुम्हालोके অসমীয়া পাঠ্যপুথিত পঢ়িছা ব্যাখ্যা তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰাৰ আগত সদায় কিন্তু এইখিনি লিখি দিয়া যে উক্ত কবিতা ফাঁকি বা উক্ত বাক্য ফাঁকি এটা উক্ত বাক্য ফাঁকি অমুক নামৰ কবিতাৰ পৰা তমুক নামৰ কবিয়ে ৰচনা কৰিছে তাৰে পৰা উঠাই দিয়া হৈছে এনেকৈ লিখা সেম বস্তুটো তোমালোকে কি কৰিবা হিন্দীটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে হিন্দীটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব যে এই বাক্যশাৰী কৰ কোনটো পাঠৰ পৰা লোৱা হৈছে কোনে ৰচনা কৰিছে এনেকৈ লিখিব লাগিব এইখিনি লিখিলেও কিন্তু তোমালোকে 1 নম্বৰ পাবা ইয়াত হিন্দীত কেনেকৈ লিখিছে যে প্ৰসংগ प्रस्तुत पंक्तियाँ ये प्रस्तुत पंक्तियाँ माने ये लाइन कथा कैसे हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक अर्थात हमार हिंदी किताब आलोक भाग 2 में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कि रचना करा नीम की ईट नाমৰ पाठ से उपस्थापन किया गया है अर्थात এইটোৱে কৈছে যে ওপৰৰ বাক্য ফাঁকি আমাৰ হিন্দী কিতাপ आलोक भाग 2 राम वृक्ष बेनीपुरी नाমৰ কবিয়ে रचना करा नीम की ईट नाমৰ पाठৰ পৰা তুলি অনা হৈছে এতিয়া তোমালোকে ব্যাখ্যাটো লিখিবা व्याख्या की আছে लेखक कहते हैं कि सत्य हमेशा कठोर होता है और यह कठोरता और बहापन के साथ जन्मा करते हैं कठोरता के लिए मौन बलिदान चाहिए लोग ऐसे बलिदान से भागकर बेकार प्रशंसा आशा करते हैं सत्य से भागकर असत्य को आश्रय देते हैं पाठ के अनुसार सब लोग बहेपन से गुमनामी से भागते हैं इसीलिए नीम की ईंट बनाने से भी बचता है वे चुपचाप बलिदान से ही बचते हैं ऐसा नहीं बलिदानों को गुणगान करने से भी बचते हैं यह जानबूझकर ही करते हैं इसीलिए हमेशा लोग सत्य से भी धीरे धीरे भागते हैं ठीक है छुट्टी को लिखी दिया तुम्हारे भालके लिखी लबा
नेक्स्ट तुम्हारे वाक्य আছে सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान ईट का हो या व्यक्ति का हो। उत्तर होगा प्रसंग प्रत्यय पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नीम की ईट नामक पाठ से उपस्थापन किया गया है। व्याख्या होगा लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि सुंदर सृष्टि अपने आप नहीं होती है, इसके लिए त्याग और बलिदान जरूर लगते हैं। जिस प्रकार नीम की ईंट की बलिदान से दुनिया में इमारत खड़े रहते हैं, कंगूरे बनते हैं। लोग इमारतों को प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन प्रशंसा के पीछे नीम की ईंट का बलिदान है। वो मिट्टी के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ जाते हैं, अपने को मौनता सा अंधकार में सौंप देता है। वह कभी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार नए समाज के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना चाहिए। जिस प्रकार कोई लोगों को बलिदान से देश की स्वतंत्रता मिली, देश को नई सृष्टि के मौका मिली। इतिहास तुम्हारे घ नंबर प्रश्न अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। नीम की ईट बनने की कामना लुप्त हो रही है। अर्थात सकलोवे कंगूरा की ईट बनिब खुजी आछे, किन्तु नीम की ईट बनिबलै मानुह कमी आछे। এইটো ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। ব্যাখ্যা কৰিলে তোমালোকে মনত আছে, তোমালোকে सेम এই লাইনখিনি লিখিবা যে प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नीम की ईट नामक पाठ से उपस्थापन किया गया है। और व्याख्या की है लेखक बेनीपुरी जी ने कहते हैं कि आज लोग इमारत के कंगूरे बनने के लिए चारों ओर होराहोरी लगाते हैं, क्योंकि लोग आज सत्य से भागते हैं। कंगूरा बनने में बलिदान का, त्याग का, कठोरता का कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए कंगूरा बनने में लोग उतावल होने लगते हैं। लेकिन कंगूरा से दुनिया में नया सृष्टि नहीं मिलती है। सृष्टि तो नीम से हो सकती है। लोग नीम होने की बजाय कंगूरा बनने जा रहे हैं, जिससे समाज नहीं बन सकते। यह बड़े अफसोस की बात है। यह भविष्य के लिए बड़ी भयानक चिंता है। এতিয়া তোমালোকৰ ভাষা এবং ব্যাকৰণ আগত তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিলা পাঠৰ ভিতৰুৱা। এতিয়া তোমালোকৰ ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে। এইবোৰত কিন্তু তোমালোকৰ অভ্যাসমালাৰ পৰাই দিয়া হৈছে। 1 নম্বৰত কি আছে, নিম্নলিখিত শব্দ में से अरबी फारसी के शब्द को चयन करो। মানে তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে। এইবোৰ শব্দৰ পৰা তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব কোনবোৰ আৰবী আৰু কোনবোৰ ফাৰ্সি। আমি ইয়াৰ উত্তৰ চাম। আৰবী কোনবোৰ হয়? আৰবী হয় দুনিয়া, মুনহাসির, आवरण, रोशनी, शासक। এইবোৰ কি আরবি শব্দ। और फारसी शब्द কোনবোৰ? इमारत, जमीन, शहादत, आजाद, अफसोस, शहरत। এইবোৰ হল কি फारसी। তোমালোকে এইবোৰ লিখি ল'বা। এইবোৰ কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব। কিন্তু 2 নম্বৰত কি আছে, তোমালোকৰ নিম্নলিখিত शब्द का प्रयोग करके বাক্য বনাও। তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, এইবোৰ তোমালোকে বাক্য সজাব লাগিব, মানে বাক্য বনাব লাগিব। উত্তৰ আছে কি চমকিলি মানে হৈছে চকমকীয়া কিছুমান বস্তুৰ কথা কৈছে, মানে চকমক কৰি থকা বস্তু। এইটোৰে যদি তোমালোকে এটা বাক্য সজোৱা কি হ'ব? আকাশ কে চমকিলি তাৰো কো দেখकर बच्चा স্থিৰ हो गए। তাৰপিছত কি আছে তোমালোকৰ कठोरता उन्नति का प्रतिशब्द है। बेतहाशा, कोई काम करने से सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बेतहाशा हो जाएगा। तब क्या है भयानक, जंगल में भयानक जानवर होती है। जैसे गिरजाघर में प्रार्थना चल रहे हैं। इजी আছে এইবোৰ তোমালোকে লিখি ল'বা। এবাৰ ভালকৈ পঢ়িলে মনত থাকি যাব। 3 নম্বৰত আছে নিম্নলিখিত বাক্যক শুদ্ধ কৰক। তলত কিছুমান বাক্য তোমালোকে ভুল কৰি লিখি দিয়া আছে, এইবোৰ তোমালোকক শুদ্ধ কৰিব দিছে। শুদ্ধ কৰিলে কি হ'ব? नहीं तो हम इमारत की गीत नीम की गीत से प्रशंसा करते। ইয়াত কি ভুল আছে? উত্তৰ হ'ব नहीं तो हम इमारत के गीत नीम के गीत से प्रारंभ करते हैं।
তোমালোকে পাৰ্থক্যটো মিলাই ল'বা এবাৰ, নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। মই অকল তোমালোকক এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रणाम से फल फूल रहे हैं। ইয়াত কি ভুল আছে উত্তৰত তোমালোকে চালে গম পাবা। ईसाई धर्म उनके पुण्य प्रताप से फल फूल रहे हैं, অৰ্থাৎ কি ভুল আছে, উन्हीं के নহ'ব, উনকে হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে কিন্তু পাৰ্থক্যবোৰ দেখি ল'বা, উত্তৰ লিখি দিয়া আছে যিহেতু তোমালোকে এবাৰ পাৰ্থক্যটো মিলাই ল'বা। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की और हम पहला कदम बढ़ाए हैं। याद की भूल है, सदियों के बाद नया समाज की सृष्टि की और हमने याद की हब हम न हब हमने हब पहला कदम बढ़ाए हैं। तारपिছত की আছে हमारे शरीर पर कई अंग होते हैं। याद की भूल है, याद हब हमारे शरीर में, पर नहीं हमारे शरीर में हब कई अंग होते हैं। तारपिছত हब तुम्हालोकर हम निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। याद की भूल है, हमें निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। सब ताजमहल की सौंदर्यता पर मोहित है। याद की भूल है, सब ताजमहल की सौंदर्यता नहीं होबो, कि सौंदर्य पर मोहित होती है। तारपिছত আছে তোমালোকৰ गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। ইয়াত কি হ'ব, गत रविवार को वह मुंबई गए, অৰ্থাৎ ইয়াত আগতে যোৱা কথা কৈছে, সেইকাৰণে গয়ে হ'ব, যায়েগা নেহি। এই ভৱিষ্যতৰ কথা কোৱা নাই, এইটো অতীতৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে आप कृपया हमारे घर आने की कृपया करें। কি হ'ব, आप कृपया हमारे घर आए, এনেকৈ হ'ব, এইটো নহয়। তাৰপিছত हमें अभी बहुत बातें सीखना है। এইটো কি হ'ব, हमें अभी बहुत बातों को सीखना है। তোমালোকে পাৰ্থক্যটো মিলাই ল'বা, কি ভুল আছে। मुझे यह निबंध पढ़कर आनंद का आभास हुआ। কি হ'ব, मैंने यह निबंध पढ़कर आनंद का आभास पाया। ইয়াত কি হ'ল, हुआ नहीं হ'ব, पाया হ'ব, और मुझे नहीं হ'ব, मैंने হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকৰ 4 নম্বৰত দিয়া আছে কি, निम्नलिखित लोकगीत का भाव पल्लवन करो। মানে তলত থকা লাইনবোৰৰ কি ভাৱ আছে বা অৰ্থ কি আছে লিখিব লাগিব। ক নম্বৰত কি আছে, आधे जाल वाले घरे को सलकने देना। কি কৈছে, आधे जाल वाले घरे को सलकने देना। उत्तर होब, जब किसी व्यक्ति को किसी विषय में ज्ञान अधिक कम हो और यह दिखावा बखान अधिक करे कि उसे उसके बारे में बहुत ज्ञान है, तो उसके लिए आधा जल गगरी सलकत जाए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। তাৰপিছত কি আছে, होनहार बीरबान के কি কৈছে, होनहार बीरबान के होते चिकने पात। ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব, जो बड़ा होकर प्रसिद्ध बनता है बचपन से भी उनका परिचय मिलता है। जैसे शिवाजी के बचपन से ही वीरता का प्रमाण हमको मिले थे। स्वतंत्र राज्य स्थापन को कल्पना वह बचपन से ही करते थे और आखिर एक दिन सफल भी हुए। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে, আমাৰ এছামিছতে জতুৱা ঠাঁচ আছে, যি মূলা বাৰে দু পাতত আছিল, এইটো একে। ঠিক আছে, গ নম্বৰত আছে अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। यार उत्तर की होगा, जब किसी काम के बाद से उसके नुकसान था, असफलता होते हैं, उसके बाद जागरूक होने के लिए कहीं जाती है। यह लोकगीत उस समय का वर्णन करती है जब किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया और उसे पछताने की जगह उसे कुछ नहीं देती होता।
তাৰপিছত কি আছে, জাকো ৰাখে চাইও মাৰে চাকে না কইও। ইয়াৰ अर्थ কি হ'ব, भगवान जिसको सहायता करते हैं उसके कोई भी मार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवों को भगवान सहायता करते हैं और सहारा देती है। जीवित रहने के शक्ति देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भगवान के नाम लेना चाहिए, हमें भगवान के प्रति विश्वासी होना चाहिए, हमको भी भगवान जीने की शक्ति देते हैं। ये तुम्हारे 5 नम्बरत আছে निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ बताए। तলত যিবোৰ শব্দ দিয়া আছে এইটোৰ এটা কৰি নহয় দুটা কৰি অৰ্থ ক'ব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ কি, দুটা কৰি অৰ্থ ক'ব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তোমালোকে ভালকৈ লিখি ল'বা। এইবোৰ অম্বৰ মানে হৈছে আকাশ ও ব্যায়াম। উত্তৰ মানে হৈছে দিশা ও জবাব। তাৰপিছত কি আছে তোমালোকৰ কাল মানে হৈছে সময় বা নিয়তি। নৱ মানে নয়া বা নতুন। এনেকৈ দুটা কৰি অৰ্থ লিখি দিয়া আছে, তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা। পত্ৰ মানে চিঠি या खत, মিত্ৰ দোস্ত বন্ধু। তাৰপিছত বৰ্ণ অক্ষৰ বা শ্ৰেণী, হাৰ পৰাজয় পৰাভাৱ, কল ধ্বনি বীৰ্য। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ কনক স্বৰ্গ সেনা সোনা, এনেকৈ হ'ব। আৰু 6 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ কি, निम्नांकित शब्द जोरो के अर्थ का उत्तर बताए। এইটো তোমালোকৰ এই জুৰীয়া শব্দ আছে এইবোৰৰ অৰ্থ লিখিব লাগিব। এটাত কিন্তু দুটা আছে, দুটাৰে অৰ্থ লিখিব লাগিব। যেনেকৈ অগম দুৰ্গম, অগমৰ অৰ্থ লিখিব লাগিব, দুৰ্গমৰ অৰ্থ লিখিব লাগিব। কি আছে, অগম মানে जहाँ गमन नहीं किया जाता है, दुर्गम माने जहाँ गमन करना मुश्किल है। अपराध माने হৈছে दोष, पाप হৈছে কি अधर्म। তাৰপিছত কি আছে, আশ্ৰয় হাতিয়াৰ। অস্ত্ৰ মানে হৈছে কি হাতিয়াৰ। अस्त्र माने हथियार, शस्त्र माने কি निक्षेप करने वाला हथियार। आधि হৈছে मानसिक व्यथा और व्याधि হৈছে बीमार। दुख হৈছে कलेश, खेद হৈছে थकावट। स्त्री হৈছে औरत, पत्नी হৈছে अर्धांगिनी। आज्ञा হৈছে কি आदेश, अनुमति হৈছে स्वीकृति। अहंकार अभिमान, गर्व, समर्थवान अहंभाव। এনেকৈ তোমালোকৰ পাৰ্ট অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।